Hello guys, welcome back on Future Making Training Center Hub of Knowledge Mac. Guys, today I am going to teach you terminology difference of ISO 9001-2008 versus ISO 9001-2015 and complete difference of product and service. So please let me continue this video till end. दोस्तों, हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग training, placement and development of career. Hello friends, I am Rohit from Ballabgarh. I have recently completed my training from Hub of Knowledge MAC. Friends, if I talk about my training experience, it was really very nice with Mr. S.K. Sharma. He is very nice person. He is the best teacher in the field of industrial training and documentation. Friends, if you want to learn from zero to hero, then this is the best place for take off your career at peak. This is Jairam from Bangalore. I have successfully completed online course from Mr. Sanjay Sharma. After completing online course, drastic improvement in my career. Thank you above knowledge Mac team. Myself Sunil from Bangalore. I have completed the course of ISO 9001-2015 through the Hub of Knowledge. I am Subhasis. I am from Madhya Pradesh. I have done online training course. It's very useful. Hi, my name is Ashutosh Rai from Faridabad. I have completed my online training course. It's really a future maker training center. My name is Swapnil from Pune. I have completed my online training course. No doubt, this is a future making training center. Hi, my name is Manish from Bahadurgarh. I am doing online documentation training course under the guidance of Mr. S.K. Sharma sir. And I am Uben Singh Yadav from Ballabgarh. I have completed my online training course. Let's start major difference in terminology between ISO 9001-2008 and ISO 9001-2015. First difference is product word is used in ISO 9001-2008. In ISO 9001-2015 product and service word is used. So friends, ISO 9001-2008 में प्रोडक्ट वर्ड का ही यूज़ किया गया था। अब इस नए स्टैंडर्ड में प्रोडक्ट के साथ में सर्विस को भी ऐड कर दिया गया है। So now let you clear the difference between product and service. Product is the physical parts or material that to be sold in market for customer satisfaction. For example, car, bike, scooter, machine and food product etc. दोस्तों, प्रोडक्ट फिजिकल मटेरियलिस्टिक पार्ट होता है जिसे कस्टमर की ड्राइंग व डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। प्रोडक्ट कस्टमर की नीड व एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है। सर्विस इज नॉन मटेरियल और द वर्क टू बी डन फॉर कस्टमर एज पर हिज डिजायर एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट्स, जैसे कार सर्विस, बाइक सर्विस, होटल रूम सर्विस, ओला सर्विस, जोमेटो फूड डिलीवरी सर्विस, फ्लिपकार्ट डिलीवरी सर्विस। सेकेंड डिफरेंस इज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी MR इज मैंडेटरी इन क्लॉज नंबर 552। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ MR इज मेंशन्ड। दोस्तों, ISO 9001-2008 में MR की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए MR रखना मैंडेटरी होता था। But in ISO 9001-2015, MR not mandatory, but similar responsibility and authorities are mentioned in clause number 5.3. दोस्तों, ISO 9001-2015 में MR को रखना मैंडेटरी नहीं है, बट उसकी जो रिक्वायरमेंट है यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी है वो सेम है। एनीवन स्किल्ड पर्सन कैन हैंडल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेशली MR नॉट रिक्वायर्ड। सो दोस्तों, उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी को अधेयर करने के लिए यानी फुलफिल करने के लिए स्पेशली MR की ज़रूरत नहीं होती है। उसे इन सभी एक्टिविटीज़ को कोई भी स्किल्ड पर्सन हैंडल कर सकता है। Third one difference is documentation requirement like quality manual, procedure, format covered in clause number 4 quality management system. दोस्तों, ISO 2008 के स्टैंडर्ड में अकॉर्डिंग टू क्लॉज नंबर 4 कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन डिस्कशन किया गया है, बट इन ISO 9001-2015 में
डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का नाम दिया गया है, जिसमें ये 7.5 को कवर करता है। एंड प्रोसीजर वर्ड रिप्लेस्ड विद रिक्वायरमेंट। दोस्तों यहाँ प्रोसीजर वर्ड का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट का यूज हुआ है। नेक्स्ट फोर्थ वन डिफरेंस इज परचेज्ड प्रोडक्ट डिस्कस इन क्लॉज नंबर 7.4। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी बाहर से प्रोडक्ट खरीदा जाता है उसे परचेज्ड प्रोडक्ट बोला जाता था इन ISO 9001:2008 में, जो कि क्लॉज नंबर 7.4 में डिस्कस हुआ था। बट इन ISO 9001:2015 में एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विस डिस्कस्ड इन क्लॉज नंबर 8.4। अकॉर्डिंग टू क्लॉज नंबर 8.4 बाहर से जो खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट हैं उनको एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सर्विस बोला गया है। फिफ्थ वन डिफरेंस इज सप्लायर वर्ड यूज्ड। जिनसे हम परचेज करके आइटमों को बाहर से खरीदते थे उन्हें सप्लायर बोला जाता था। अब एक्सटर्नल प्रोवाइडेड बोला जाता है। जो भी आइटम बाहर से खरीदते हैं, जो हमको आउटसाइड आइटम प्रोवाइड करते हैं, उन सप्लायर्स को एक्सटर्नल प्रोवाइडर बोला गया है। सिक्स्थ वन इज मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट। दोस्तों प्रोसेस के आउटपुट को मेजर करने के लिए और मॉनिटरिंग करने के लिए जो रिसोर्सेज यूज होते थे उन्हें मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट बोला जाता था। बट इन ISO 9001:2015 में मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज बोला जाता है। अपने प्रोसेस के आउटपुट को और उसको मेजर करने के लिए जो भी फैसिलिटीज या इक्विपमेंट का यूज होता है उसे रिसोर्सेज बोला गया है। यहाँ पे ISO 9001:2008 में वर्किंग इन्वायरमेंट की बात होती थी, बट इन ISO 9001:2015 में यहाँ ऑपरेशन व प्रोसेस के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट कंडीशन व इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट की बात की गई है। दोस्तों यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। दोस्तों